दोस्तों, कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है और ये दिल्ली जब आकर अहमदाबाद से मिलती है तो लगता है कि दो दिलों का गुलिस्तां खिला है। और इसी खिलते हुए गुलिस्तां में कुछ चेहरों का पता मिलता है और इन चेहरों की मुस्कुराहट से शैल्बी का पता मिलता है। और ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है ललिता जी निझावन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ललिता जी से सवाल पूछूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ललिता जी खुद एक जवाब हैं। ललिता जी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अपने एकेडमिक्स में। ललिता जी एंटरप्रेन्योर हैं। ललिता जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सो शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मैनी मोर। सो ललिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस प्रोग्राम में। और हम आपसे सवालों का सिलसिला जारी करें उससे पहले आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। I was gold medalist from Delhi University. जी। Then soon after that, I started a school of mine, and I had that school for 10 years because I was challenged by my professor that because she thought I'm very capable and I can't just be not doing anything. It was not easy for women at that age to work, but maybe I had nerves of steel that I wanted to prove it to her that yes, I can do it. So I started a school, and after 10 years of running a school, my husband, he was running GSA of British Airways in India, so I joined him, and and I came to the corporate world. Because my boys were doing very well, so I decided to come into the field of social work. My father had a trust, so I wanted to do. I had been working on it, but then I worked full time on it. So when I started working on that, and that gave me a lot of pleasure. In fact, near Rajasthan, Banswara, all these areas, I started working and was funding schools. So once these children, the schools started, we had about, I was funding about 300 to 400 schools. Then I wanted to go to Northeast also because that was a very difficult area to work. The family didn't want me to go in that area, but it was just I decided I had to write story of my life with my own pen, and really I went there. That was the time of terrorist movement over there, and it was very dangerous. In fact, I got lost in those areas for about 8 hours, and the family thought they lost the link. Thought that maybe I'm gone. But of course, I'm here. Wonderful, Lalita ji. You have done a lot, you have achieved a lot, and I'm sure in this journey you have been very well. And now, as and when age progress, if things are getting good in terms of your business, in terms of family, but one should pay attention to health also. And we came to know that you have recently done TKR with Shelby. So how come you have chosen Shelby and you are from Delhi? I'm sure there are a lot of facility, lot of medical technological advancement there in Delhi also. What made you to choose Shelby? You're saying it so rightly because it is not only Delhi that I could handle this kind of surgery. I could even go abroad because a number of years I've spent abroad in Toronto, and there was always an option of, going abroad because of the support system I have there. But the people around, one of my friends who had got it done from here, she talked so highly about it and she gave me the confidence that there is no place like this. Wonderful. In details, when she told me how the first day, the second day, the third day, and the fourth day, how things progress, and I also somehow, the way she said and the way she went about it, and then there was a big group of women who were sitting there, and she said that, there's no, I mean, she told everybody, I think she was a big brand ambassador, and she kept on talking and talking about it. So then I talked to her further in detail, and she says, Wonderful. I don't even think twice about it. But it's not that I had not done my research work before, Yeah. because she came to me when I had already done the research work, about 50% of my research work, and in Delhi itself. And my own brother, Yeah. he's a specialist in knee surgery, and of course, but
this brother, मुंह बोला भाई है. अच्छा. He is now 80 plus. Oh. So I asked him, I said, Dr. Bhai, should I have heard of this Vikram Shah? Have you heard about it? He says, उनके बारे में कौन नहीं जानता. Wonderful. He says, he's the most accomplished doctor, and he used to work in All India Institute of Medical Sciences, this brother of mine. So, and coming from him, Dr. Vikram Shah had to be special. Wonderful. And I was started dreaming that yes, this doctor is going to do for me. And then, of course, I mean, I didn't even end it there. I must have talked to so many big names that we people here in Delhi. My family supported me. Went to 3-4 of them, the big names. And just because our family is popular in Delhi, so we could manage meeting them without any delays and without any kind of thinking process. So I met them. Somehow, still I don't know. It's just that there's so much talk in Delhi about Vikram Shah. And what I felt, because we had another month to decide, and we were going for a holiday to Iceland and taking a cruise. I came across more women. I was surprised. They said, Vikram Shah, उनको कौन नहीं जानता? हमने भी उनसे कराया. तुम सोच क्यों रही हो? जाती जाओ, So that kind of confidence people gave, and एक के बाद मिलते गए. Then I also Googled, and the other factor was Dr. Dhireen Shah. Yeah. So when Dr. Dhireen came to Delhi, तो मेरे को दिल्ली में पता चला कि उनके एक सहकर्मी आते हैं, धीरेन मनकर करके नाम बताया गया. तो मैंने फ़ोन किया, उनसे बात की, तो वो बहुत ही एनर्जेटिक और मतलब बड़े फ्रेंडली लगे, पीपल्स फ्रेंडली लगे. तो मैंने कहा आपको मिलना चाहती हूँ. उन्होंने टाइम फिक्स किया. टाइम फिक्स करके मैं मिली उनसे. मिलने के बाद उन्होंने जो एक बात बहुत बड़ी बोली, जो हमको जिस पे गूगल करना हमें आसान हो गया. उन्होंने बोला उन्होंने 1.5 लाख सर्जरी की है, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. तो वो इतनी सर्जरीज कर चुके हैं. तो घर आकर मैंने फिर उस चीज़ पे चेक किया. जो भी बड़े नाम है, चाहे वो मेदांता में थे, चाहे वो मैक्स में थे, जहाँ कहीं भी मिले, तो किसी की 30,000 पड़ी, किसी की 40,000 पड़ी, किसी की 50,000 पड़ी. सो बड़ा एक कॉन्फिडेंस आया. हमने फिर धीरेन जी से फिर बात करनी. देखिए, हमने मेहनत की थी पता करने के लिए. फिर हमने उनसे मिलने की एक बार कोशिश की, और उन्होंने इतना हमको एक प्यार दिखाया कि जो उस टाइम बहुत ज़रूरत होती है, इंसान किस तरह से आपसे बात करता है, तो उन्होंने दिखाया. वो हमारे घर भी आए, हमारे घर आए, लंच खाए, क्योंकि उनके दो क्लिनिक के बीच का रास्ते में हम थे. तो जो अगेन विच टच इज़ द हार्ट ऑफ अ पर्सन. फिर उन्होंने इस बारे में जब और हॉस्पिटल का बताया, और हमको बड़ा एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया. फिर उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम फिर आए, फिर हमसे बातचीत की. अब देखिए, हमारे जैसे लोग, जिसके बारे में मैंने बहुत लोगों को बोला, कि उन्होंने घर में आके ये भी बताया कि ये वाला बेड आपका ठीक रहेगा, इसके नीचे ईंटें लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये पॉट ठीक रहेगा, क्योंकि इसको एक सीट ले लीजिए. आजकल के ज़माने में कौन है, कहाँ होता है ये सब. दैट पर्सनल टच, it won our heart. It was too much for us to digest. कि आजकल भी क्या ऐसे लोग हैं, शायद हमें दिल्ली में ऐसी आदत रही नहीं, और हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी किसी डॉक्टर का इतना प्यार देना. ओके, ग्रेट मैम. तो आपने अपना होमवर्क किया, आपने अपने फ्रेंड से ओपिनियन लिया, आपने मेडिकली ओपिनियन लिया, आपने थ्रू इंटरनेट सर्च किया, आपने डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स देखे. जैसा कि आपने बोला कि आपने बहुत मेहनत की है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी मेहनत रंग लाई? कोई ये तो अब सवाल मेरे मन में उठ ही नहीं सकता. जिस तरह से केयर हुई है यहाँ पर, मैं शॉक. अच्छा. आई वाज लाइक, आप देखिए कि कोई तो, और क्या सर्जरी के क्या 2 घंटे के बाद कोई चल सकता है. मतलब सुना था, पर क्या मैं चल पाऊंगी, ये मेरे को समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया. क्या बात है. और वो एक कॉन्फिडेंस था, आपको बस कहाँ पहुँचा देता है, पता नहीं किस तरह की दुनिया में पहुँचा देता है कि आप कर सकते हैं. जी. उससे अगले दिन तो कदम चढ़वा दिए. उस कदम जब चलवा दिए, वहीं तक नहीं खत्म, सीढ़ियाँ चढ़वा दी. जी.
आई कांट गेट ओवर। मतलब मेरे को आप रुला देंगे ज़्यादा पूछ के कि किस तरह से एक इंसान को खड़ा कर दिया गया, किस तरह से उसके जीवन में बदलाव लाया गया। ये जरूर था लास्ट ईयर ऐसा लगना शुरू हो गया था कि शायद अब वो बात नहीं रहेगी जिस तरह से मैंने काम किया लाइफ में, शायद नहीं कर पाऊंगी। पर अब आज के दिन में मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। जी। और वो एक कॉन्फिडेंस जो यहाँ आकर मिला है जी, शब्द तो शायद नहीं डिस्क्राइब कर सकते। मैं शायद जबकि मैं ठीक स्पीकर हूँ पर मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जी। इट्स वेरी इमोशनल। जी। जो दोस्तों निदा फाजली एक जगह लिखते हैं कि निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में। आप देख सकते हैं आज जिस तरह से ललिता जी अपनी खुशी को आंसुओं में बयां कर रही है, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर विक्रम शाह को और उनकी टेक्निक को, जिस टेक्निक का नाम है ज़ीरो टेक्निक। ये ज़ीरो टेक्निक की बदौलत पेशेंटों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, वो जल्दी अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ये टेक्निक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत कम इंसिजन लगता है, बहुत कम ब्लड लॉस होता है, बहुत कम टिश्यू डैमेज होता है। तो जैसे ललिता जी ने हमें बताया कि वो सेम डे चलना शुरू हो गई थी, कुछ घंटों में तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी दुनिया बदल गई है। तो ये जो मौजीज़ा है, ये चमत्कार है, ये जादू है, ये बरसों की मेहनत है डॉक्टर विक्रम शाह की। ये टेक्निक का जो इन्होंने ईजाद की है उसका कमाल है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दर्द है, परेशानी है, सवाल है, सो हम 24 घंटे अवेलेबल लेते हैं। जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि इनकी टीम डॉक्टर शाह की जो टीम में जितने भी जुड़े हुए डॉक्टर्स, उसके अलावा जो इनकी जो रूम में केयर थी, जो इनके मेडिकल ऑफिसर्स बाहर जी, या इनके केयर टेकर्स जी, मतलब मेरे पास तो सभी लोग ऐसे मेरे को मिले जो कि देखने को मिले ही नहीं मेरे को। मैं तो फैमिलीज में हम लोग भी लोगों को डॉक्टरों के पास जाते हैं। फादर इन लॉ भी बहुत बीमार रहे, मेरे हस्बैंड खुद बीमार रहे। हमको इस तरह से प्यार और इकट्ठ होना और खड़े रहना जी देखा नहीं मैंने पहले। जी। कहते हैं ना कि दिल्ली दिलवालों की, आप दिल्ली से हैं तो अहमदाबाद वाले भी चाहत कम नहीं रखते हैं। अहमदाबाद भी अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखते हैं। और ललिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हमारे पेशेंटों को पेशेंट ट्रीट नहीं करते, वो हमारे ख़ास मेहमान होते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आए, चाहे वो हिंदुस्तान से आए, चाहे घाना से आए या किसी भी कोने से आए, वो हमारे ख़ास मेहमान होते हैं। और जब तक वो अपने पैरों से चल कर नहीं जाते तब तक हम बैठते नहीं हैं। हम पूरा एफ़र्ट लगाते हैं हमारे मेहमानों को यहाँ से पैरों से रुखसत करने के लिए। तो आप ने शेल्बी के बारे में बताया, आपने यहाँ के स्टाफ के बारे में बताया, और जाते जाते आप हमें कुछ और जानकारी दीजिए कि आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को शेल्बी इन फ्यूचर अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है रिकमेंड करेंगे, या आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, रिकमेंड तो क्योंकि कुछ जानी मानी हुई फैमिली है हमारी दिल्ली के अंदर, परिवार भी हम लोग बहुत बड़ी फैमिली है, तो सब लोगों को हैरानी बहुत हुई है कि मिसेस निशामन आप जा भी रहे हो तो अहमदाबाद, हम तो सोचते थे कुछ कराना होगा तो यूएस से जाओगे, अहमदाबाद। तो उनको मतलब ये चीज़ अभी समझ नहीं आई थी शुरू में, तो हमने तब से कन्विंस कर रहे थे। अब मेरे को लगता है कि मेरे को ऐसा महसूस है अब फ्लड आएगा, क्योंकि लेडीज सब इस चीज़ से, मैंने फ्रेंड्स में से जो सफ़र कर रही हैं, फैमिलीज भी है, तो और माउथ टू माउथ ये बात मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी से फैलेगी जी। आई मीन द कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों को। और मैं तो, मेरे पास वैसा कोई वो नहीं आता बोलने के लिए, बस परमात्मा से ये दुआ है कि यहाँ पे सब ठीक होकर ही जाए, जिस तरह का आप लोग कर पा रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होंगी डॉक्टर विक्रम शाह को अंदर से, मतलब मेरे पास, मैं तो शायद ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊंगी कि क्या कोई आपने अच्छा बोला, पर परमात्मा में बहुत लंबी उम्र दे उनके परिवार को और जो उनके साथ के लोग जो जुड़े हुए हैं जी, मतलब जो वो चाहे जिंदगी में उन्हें मिले जी। तो ललिता जी, एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन जो इतवार है और ये सुबह का मौसम खुशगवार है, और अहमदाबाद में और दिल्ली में दोनों में बारिश हो रही है बहुत अच्छी सी। तो आप यहाँ
का मौसम खुशगवार करके जा रही हैं और दिल्ली में आपको वहाँ का मौसम ऑलरेडी खुशगवार मिलेगा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप फिर से हमारे मेहमान बन के आइए, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जहाँ भी जा रहे हैं और जिस किसी के चेहरे पर थोड़ी सी शिकन देखें दर्द को लेकर, तो शैल्बी का नाम रिकमेंड कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में।